we have started with the national income accounting and all. So it means we are talking about macroeconomics. When we are studying economics, there are two perspective or the point of view through which we can study economics. One such is the micro level, the smaller level, and the broader level, that is the macro level. So macro level का मतलब ये होता है it means there's a broader scope, a wider scope, right? So micro level हम लोग ये smaller level को बोलते हैं micro analysis, and macro level a broader level, fine. But ये जो level of analysis है it matters कि किस level पे कर रहे हैं. Suppose if I am talking about Kolkata telecom market, right? And in reference to that, I am studying about India telecom, overall Indian telecom market, domestic market. So definitely here Kolkata becomes the micro level of analysis and entire Indian telecom market becomes the macro level of analysis. होगा ना? कोलकाता क्या हो जाएगा? Micro level of analysis, whereas Indian market will be the macro level of analysis. Fine. But if I study Indian telecom market in reference to the global market, now definitely ये जो global market है, global telecom market will be the macro level of analysis. ये हो गया आपका macro analysis. And इस time में India वाला जो हो गया Indian telecom market analysis, that will be micro level of analysis. So if I am considering micro and macro, it means that the reference we are talking about, the reference to which we are analyzing something, it will demarcate something as either micro or macro. ये जो demarcation है, line of demarcation, इसको हम difference कर रहे हैं, what is micro and macro, तो इसको हम इस level, किस level से हम refer कर रहे हैं, उसके हिसाब से बोलते हैं माइक्रो, एंड द माइक्रो विल बी दी स्मॉलर सेगमेंट एंड मैक्रो विल बी दी ब्रॉडर सेगमेंट. ठीक है. So here when we are talking about overall Indian economy, so in general if we are talking about Indian economy as a whole, it means the micro level, because we will be studying in details about the overall Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी में हम क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे? इंडियन इकोनॉमी में हमारे कितने सारे रिसोर्सेज हैं, कितने हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, इन रेफरेंस टू दैट कितने कंज्यूमर्स अवेलेबल हैं, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, मार्केट सेगमेंट क्या है, नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमी में मनी मॉनेटरी फ्लो कैसे, पैसे की फ्लो कैसे. तो ये सारे कुछ चीजें हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. फाइन. First thing, the economic environment keeps changing both at national and international level. So macroeconomics is the study of economy as a whole. It analyzes the various causes of problems like unemployment, low economic growth, fluctuations in business cycle, etc., as they relate to the economy as a whole. It also explains issues like what is economic growth, how it can be measured, how it helps an economy, what is inflation and deflation, how economic growth reverses deflationary trend, how inflation can be controlled, how a nation's economy is related to international economy. ये सारे कुछ जो क्वेश्चंस हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा, डिफ्लेशन पे हमारी क्या मेजर्स होने चाहिए, डिफ्लेशन के दौरान हम लोग क्या एक्शंस ले सकते हैं. तो ये सारी कुछ चीजें जो है वो हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंट एस्पेक्ट को पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा. सी ओवरऑल एज अ होल माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स विल गिव यू एन इन डेप्थ इकोनॉमी कैसे चलती है, पैसे का फ्लो, हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डिसीजन क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन डिसीजन क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहाँ समझ आएगा. ठीक है. The development of macroeconomics. When compared to various fields of economics, the study of macroeconomics is relatively new development. Before Keynes looked at the macroeconomy, there was only one school of economic thought, that is the classical school of economic thought. पहले बिल्कुल classical economic thought था जहाँ पे हम लोग सिर्फ माइक्रो लेवल को स्टडी करते थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में. सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस ही था डिफरेंट लॉज या डिफरेंट थ्योरीज के ऊपर. हमारी जो डिफरेंट प्राइस थ्योरीज हैं, कंज्यूमर डिमांड, यूटिलिटी, जो हम पढ़ के आए हैं. Due to their emphasis on the micro level analysis, classical economists believed there was a natural tendency towards an equilibrium position due to interaction of an individual economic agents. क्योंकि पहले का फोकस ही था क्लासिकल थ्योरी या माइक्रो लेवल पे, तो वहाँ पे इकोनॉमिस्ट का मानना था कि एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हर कुछ इक्विलिब्रियम पे आएगा, बैलेंस आएगा ऑटोमेटिक. एक कंज्यूमर जैसा हम लोग ने पढ़ा है पहले भी कि
डिमांड अगर ऐसे आ रही है तो सप्लाई को मैच करना ही है, तो ऑटोमेटिक एक इक्विलिब्रियम आना है इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये पहले का कॉन्सेप्ट था। ये मैंने जो क्लासिकल थ्योरी है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करती थी, इसी वजह से। Therefore, in their opinion, there was no need for any kind of government intervention in the economy. Market forces guided by the price mechanism will lead the economy to a full employment level within a short period of time. तो पहले का कॉन्सेप्ट क्या था कि इकोनॉमिक एजेंट्स अपने आप ही काम करेंगे, माइक्रो लेवल पे फोकस था, तो डिमांड और सप्लाई मेन फोकस ही माइक्रो लेवल पे था। प्राइस थ्योरी हमने पढ़ा है ना। प्राइस थ्योरी क्या है? प्राइस थ्योरी या प्राइस मैकेनिज्म या मार्केट मैकेनिज्म का सीधा सा फंडा है दैट मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट डिमांड जो कर्व है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। वी ऑल नो बिकॉज प्राइस हैज गॉट एन इनवर्स रिलेशनशिप विद डिमांड, दैट इज व्हाई अवर डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये सबको पता है, तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो demand curve is always downward sloping and supply curve is always positive. So this is my supply curve and this is my demand curve. Clear? So wherever this demand and supply meets, this point is called equilibrium. अब ये पॉसिबल है, ये कभी पॉसिबल है कि सप्लाई हमारा नीचे की तरफ आ गई, इसका मतलब एट अ लोअर प्राइस सप्लाई इज मोर। सप्लाई जो है कम प्राइस में ज्यादा सप्लाई, या सप्लाई ज्यादा हो गई है मार्केट में, तो अगर सप्लाई ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाएगी एंड देन अ न्यू इक्विलिब्रियम विल फॉर्म। तो क्लासिकल थ्योरिस्ट क्या मानते थे कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिमांड और सप्लाई जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर देती है। इसको मतलब इसको मार्केट मैकेनिज्म बोलते हैं। ये जो ऑटोमेटिक एक इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है इसको मार्केट मैकेनिज्म या प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपने आप, यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई इंटरवेन नहीं करना पड़ा। गवर्नमेंट आके प्राइस को सेट नहीं करिए कि ये करना चाहिए या ऊपर की तरफ आप प्राइस लेके चलो यहाँ सेटअप करना, ऐसा कुछ नहीं। ये ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा है एज पर दी डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई ये दो फोर्सेस हैं जो इक्विलिब्रियम मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट को सेट कर रहे हैं, वो अपने आप हो रहा है मार्केट में। और अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम द प्राइस इज सेट। शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, इक्विलिब्रियम अपने आप ही सेट होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट बैठ के नहीं सेट करता है कि क्या होना चाहिए प्राइस, ठीक है। So mechanism would let market forces guided the price mechanism would lead the economy to a full employment level within a short period of time. Keynes published the book The General Theory of Employment, Interest and Money. अब Keynes ने General Theory of Employment, Interest and Money publish किया in 1936. The book was an attempt to understand the Great Depression in the 1930s, during which a prolonged high employment rate gripped the Western capitalist economist. ये क्या 1930s के टाइम में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, तो उस टाइम में 1936 में केन्स ने ये बुक्स पब्लिश की थी। उसका मेन फंडा क्या था कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट के कारण ही ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, अनएम्प्लॉयमेंट। Keynes had a different perspective on the situation in the industrial economies of the times. In his general theory, he explained the reasons for prolonged unemployment and also provided various suggestions to overcome the problem the industrial economies were facing at that time. He advocated the intervention of the government to deal with the macroeconomic problem, such as inadequate aggregate demand. However, his prescriptions were not useful for solving problems that gripped industrial economies in the post-World War. This led to the reformation of the classical theory by neoclassical economists in 1950s. अभी न्यू क्लासिकल जो थ्योरी है उसको पूरी तरह से नई तरीके से लाया गया न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट द्वारा। Between World War II and the 1970s, economic policies were concerned only with inflation and unemployment. अब जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में या 1970s के टाइम में जो भी इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज थी वो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर ही थी। इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इसको लेकर। गवर्नमेंट्स यूज्ड फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। अब गवर्नमेंट ने भी फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज ली। अब वो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से फिस्कल और मॉनेटरी मेजर्स लेते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। This led some economists to argue that economic policy had become concerned only with short-run management of aggregate demand. Some of them proposed that instead of changing fiscal policies from time to time, the money supply in the economy should be allowed
to grow at a fixed rate, and this would address issues like inflation and unemployment. These economists were called monetarists because of the importance they give to money supply. अब धीरे धीरे मॉनिटरिस्ट का एक कॉन्सेप्ट आया. मॉनिटरिस्ट कौन थे? जिन्होंने मनी सप्लाई के ऊपर ज्यादा फोकस किया, मतलब इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए. यहाँ पे जो देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन या ओवरऑल इकोनॉमिक जो साइकिल है उसके बारे में फोकस किया गया है. तो यहाँ पे in 1970s a new theoretical approach named the theory of rational expectation came into existence. This theory had its foundation in classical theory. In 1980s another new school of economic thought called supply side economics gained prominence. अब देखो 1970s में theory of rational expectations आया, 1980s में फिर supply side economics भी आया. ठीक है. Supply side economics stress the importance of providing incentives to people to work and save, thereby using supply as a factor to control inflation and unemployment. ये हम लोग जो इकोनॉमी का ओवरऑल साइकिल है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. When you'll be that point of time you'll be getting a great, मतलब पूरा एकदम वास्ट नॉलेज मिलेगा इसके बारे में कि किस तरीके से पैसे फ्लो करता है, कैसे गवर्नमेंट इसमें ये लेती है. नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग बोल सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स के, कुछ पॉलिसीज़ या मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी को समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमको समझना है. फर्स्ट इज जीडीपी. जीडीपी के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा है. व्हाट इज जीडीपी पढ़ा था ना लास्ट डे. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द कंप्लीट मेजर ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी. It measures the market value of all the products produced using factors of production during a specified period of time within the boundaries of a country. Last दिन मैंने पढ़ाया था कि GDP मतलब GDP का मतलब क्या हुआ? The monetary value of all the goods and services produced within the boundary of the country. मतलब हमारी कंट्री के अंदर जीडीपी का सिंपल, हम लोग नेशनल इनकम जब पढ़ते हैं ना तो नेशनल इनकम में हम लोग जीडीपी को सबसे कंप्लीट मेजर मानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी बहुत कुछ इंडिकेट करता है हमारी इकोनॉमी किस तरफ मूव कर रही है, इकोनॉमी में क्या ट्रेंड है, ये जीडीपी हमें बहुत कुछ बताता है. अब देखिए ये जीडीपी जो मैं बता रही हूँ कि ओवरऑल हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, जीडीपी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब है हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर. बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग हैं, वो चाइनीज हो, जापानीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीवन यूजिंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन. जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इसको यूज करके जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुआ है, या तो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो, जितने भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है सबको कंट्रीब्यूट या सबको कंबाइन करके हमने या प्रोडक्शन की है या सर्विसेज जनरेट की है. तो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी जनरेट किए हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू, उसका मनी वैल्यू जो है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जीडीपी. ठीक है. GDP is adjusted for price changes, inflation, then we get real GDP. लास्ट डे मैंने आप लोग को समझाया था नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट. याद है? तो सबको याद है? कौस्तवी और मोपाली, नॉमिनल जीडीपी. श्रेया ही करके हंसो मत, 2 दिन छुट्टी थी. नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी क्या है? सिर्फ 2 दिन क्या करी थी? हाथी घोड़ा तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था. कौस्तवी अनम्यूट करे बोलो. Nominal GDP means when there is a rise due to increase in price of product. Yeah. Price of product. And real GDP? When there is an increase in product, when the production remains same, it is called actual or real GDP. Now, production changes. Real GDP means your production level, your real production changes. That time it is increase in real GDP. Real GDP means real physical production. When we are talking about real physical production or increase in production, তখন ওটা হয় real GDP. But nominal GDP যখন শুধু প্রাইসটা ইনক্রিজ করছে
নমিনাল জিডিপি অনলি রিয়েল মানে প্রাইসেস ইনক্রিজ করছে আর আমরা ভাবছি হ্যাঁ জিডিপিটা ইনক্রিজ হচ্ছে, আলটিমেটলি ইট ইজ নট ইনক্রিজিং। আমার প্রোডাকশনটা রইলো only 200 but only price increase, আগে প্রাইস ছিল 10 rupees, so suppose let us get a GDP of 2000, এবার আমার এই বছরে next year the production remains the same but price is 20, so now the GDP becomes 4000. So this increase from 2000 to 4000, it is called nominal GDP because this changes from 2000 to 4000, this is only due to price change, so this is nominal GDP. Whereas when they in the actual production there is no change, this is called real GDP. Real GDP is same, 200 quintals or 200 ton or 200 pieces, it remains same. Real means actual real physical production. समझ आया? The maximum output. अच्छा, now potential GDP, GDP deficit, GDP gap, ये सब याद है? लास्ट क्लास में हुआ है। क्या सो रही थी सैटरडे संडे 2 दिन? क्या क्लास कर? अच्छा, इकोनॉमिक्स की छोड़ दी, कौन सा पाप किया था ये? चलो, full employment level. Next objective of any macroeconomic policies is to achieve the full employment level. Here, full employment levels means we have 4 factors of production. আমাদের যে economics আমরা পড়ি, we have 4 factors of production. What are the 4 factors? It is land, labor, capital and organization. ये 4 factors of production है। तो जब हम full employment की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, सपोज मेरे पास एक ऑफिस है, ऑफिस सेटअप है, सब कुछ है, बट आई एम नॉट यूटिलाइजिंग इट, वो खाली पड़ा हुआ, तो इट इज अनयूटिलाइज्ड, वो भी अनएम्प्लॉयड है ना। मेरा ये ऑफिस का रूम है, अनएम्प्लॉयड है, सारे सामान रखे हुए बट ये कोई यूज नहीं हो रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड है। बट इफ आई एम यूजिंग द लैंड, मैं ये अपने जगह को यूज कर रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब आई एम यूटिलाइजिंग इट, तो ये फुल्ली एम्प्लॉयड है। तो सपोज मैं लेबर, मैं एक पढ़ी लिखी हूँ, मेरे घर पे भी बहुत ज्यादा काम नहीं है, मैं पढ़ा भी नहीं रही हूँ, कुछ नहीं करूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, टीवी देख रही हूँ, सो मैं भी अपने आप को कंसिडर कर सकती हूँ अनएम्प्लॉयड। बट वेयर इज, मैं तो ओवर यूटिलाइज हूँ, मैं तो ओवर एम्प्लॉयड हूँ, तो यहाँ पर क्या, आई एम ऑल्सो फुल्ली एम्प्लॉयड, राइट, बिकॉज आई एम यूटिलाइजिंग माई लेबर। कैपिटल, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, ना उसको सेविंग कर रही हूँ, ना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ना उसको प्रॉपरली कहीं लगा रही हूँ, बैंक पे पड़े हुए, तो कैपिटल इज अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, नॉट ओनली ह्यूमन, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरी की बात नहीं कर रहे, हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी इकोनॉमी में है उसको एम्प्लॉयड करना है। एम्प्लॉयड मीन्स उसको यूटिलाइज करना है फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है, ये हो गया। प्राइस स्टेबिलिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट टू से फैक्टर्स और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप बोल सकते हो रोल ऑफ एनी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। मैक्रो इकोनॉमिक का बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करे, क्योंकि जो प्राइस है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज डिटरमाइंड बाय प्राइसेस। परचेजिंग पावर माने हम लोग जो सामान खरीदते हैं या पैसे का जो वैल्यू है वो डिटरमाइन करता बाय द प्राइसेस। मार्केट में अगर सभी चीजों का प्राइस बढ़ते जा रहा है तो क्या होगा, हमारा परचेजिंग पावर डिक्लाइन होगा। अगर मार्केट में चीजों का दाम घट रहा है, वो तो होता नहीं है कभी, स्टिल अगर घटे तो हमारी परचेजिंग पावर जो वो बढ़ जाएगी। सो इफ देयर इज अ मूवमेंट इन द प्राइस लेवल ऑफ प्रोडक्ट, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी ऑल्सो चेंजेस। अगर हमारा प्राइस लेवल जो है वो बढ़ता है या घटता है तो परचेजिंग पावर भी चेंज होगा, एंड ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। अगर सभी चीजों का दाम बढ़ रहा है उस टाइम में हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी ट्रेंड। व्हाइल डिक्रीजिंग प्राइसेस कैरेक्टराइजेस डिफ्लेशन, सब चीजों का दाम घट रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। An extreme form of inflation where its prices rises by thousands of percentage points in a year is known as hyperinflation. जब दाम बहुत ज्यादा कोई चीज का बढ़ जाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, मतलब 1000 पॉइंट से। Constant movements in the price level make things difficult for both ordinary citizens and policy makers. Further, rapid price changes disturb the economy as a whole. ये क्या सबके लिए सुविधाजनक रहेगा अगर प्राइस चेंज होती रहेगी? नहीं होगा ना। अगर कांस्टेंट प्राइस चेंज होगा तो इट विल बी डिस्टर्बिंग फॉर ऑल ऑफ अस, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ हिया, गुड मॉर्निंग। हाँ 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 हाँ, मम्मी बोली, हाँ हाँ हाँ, पता चला।
ओके ओके ओके। ओ तो होगा, पता नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, होगा तब। ठीक है, देख लेंगे तब होगा तो। एंड योर डॉटर्स आर फाइन, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम आके फ़ोन करो, ठीक है? चलो ओके, टेक केयर, बाय। चलो, तो हम लोग यहाँ थे, कॉन्स्टेंट मूवमेंट्स इन द प्राइस लेवल मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑर्डिनरी सिटीजन्स एंड पॉलिसी मेकर्स। अगर कांस्टेंट एक प्राइसेस में चेंज होगा तो दोनों के लिए ये प्रॉब्लम है। जो ऑर्डिनरी हम लोग जो ऑर्डिनरी सिटीजन है, हमारे लिए भी प्रॉब्लम है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बना रहे हैं, उनके लिए भी तो प्रॉब्लम है ना। फर्दर रैपिड प्राइस चेंजेस डिस्टर्ब द इकोनॉमी एज अ होल। तो ये जो प्राइस स्टेबिलिटी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइस को स्टेबल करके रखा जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एनी कंट्री। हर कंट्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो कर रही है ना, इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो ये जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, वैसे बीओपी बनता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसमें क्या होता है, कितना इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए हर कंट्री की कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सस्टेनेबल रहे। सस्टेनेबल मतलब हम लोग सस्टेन करके चल सकें। सो हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि बीओपी शुड बी इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ठीक है? अभी कभी कभी क्या होता है, हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो गया, इंपोर्ट अगर ज्यादा है देन एक्सपोर्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीओपी विल बी इन डेफिशिएट, बीओपी डेफिशिएट में होगा। डेफिशिएट मतलब हमारा बीओपी मतलब अकाउंट जो है वो कम चल रहा है, पैसे कम है, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा कर लिया हमने, ज्यादा सामान खरीद लिया, बेचा नहीं जितना, उससे ज्यादा इंपोर्ट ज्यादा किया, ज्यादा सामान खरीदा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जा रहा है, आ रहा है कम, कम पैसे आ रहे हैं और खर्चा ज्यादा होगा तो डेफिशिएट होगा ना। वेयर इज अगर एक्सपोर्ट ज्यादा रहेगा देन इंपोर्ट, तो हमारा क्या रहेगा, बीओपी विल बी इन सरप्लस। इसका मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो वो ज्यादा है, ज्यादा पैसे आ रहे हैं और कम खर्च हो रहा है। पर दोनों ही केसेस ज्यादा अच्छा नहीं है। हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या, बैलेंस में। एक टाइम है, मतलब आज से 15-20 साल, कम से कम 20 साल पहले की बात है। उस टाइम में क्या हुआ था, हमारे यहाँ पर प्याज 200 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया किलो हुआ था। क्या हुआ था, हमारे इंडिया का सारा प्याज, बहुत प्रोडक्शन हुआ, सारा बाहर चला गया, कांग्रेस थी उस टाइम में, सारा एक्सपोर्ट हो गया। तो सारा प्याज एक्सपोर्ट होने के बाद क्या हुआ, अब अपने अंदर घर पे कुछ नहीं बचा। अब वही प्याज जो बाहर से, उसको ही हमको इंपोर्ट करना पड़ा, डबल दी प्राइस। तो हमने पहले क्या किया, सारा चीज को एक्सपोर्ट कर दिया, अब अपने पास खाली हो गया, तो फिर इसको इंपोर्ट करना पड़ा। तो आप समझ सक रहे हो कि ज्यादा एक्सपोर्ट करना भी अच्छा नहीं है और इंपोर्ट करना तो है ही नहीं अच्छा। तो अल्टीमेटली ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बैलेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का रिकॉर्ड है, इट शुड बी सस्टेनेबल, मतलब ऐसा हो कि वो प्रॉपर चले, इसको बोलते हैं सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। समझ आया? The transaction consists of imports and exports of products, investment, borrowings, etc. In order to monitor all this transaction, countries keep a track of this transaction by maintaining balance of payment statistics. The BOP of a country is a systematic record of all economic transactions between the country and rest of the world. The difference between the value of imports and exports is known as net export. अब सीधी सी बात है, हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो बैलेंस है, मैंने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जब हम करेंगे तो निकलेगा नेट एक्सपोर्ट। दिस इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब पूरा रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या हो गया, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हिसाब पूरा लिखें। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ आया तुम लोग के? समझ आया तुम लोग के? Yes, ma'am. हाँ हाँ मैम। मोपाली,
तुम्हारा कुछ आवाज नहीं आ रहा है? हाँ मैम। अच्छा, समझ में आया, ठीक है। मैम সাস্টেনেবল ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মানে ইকুইলিব্রিয়াম কন্ডিশনটাকে বোঝাচ্ছে। হ্যাঁ, ওটাও বলাচ্ছে। আর তারপর বলছে সাস্টেনেবল মানে এরকম আমরা রাখবো সো দ্যাট উই ক্যান সাস্টেইন ফর লং রান। আমরা মার্কেটিং এ পড়বো কি সাস্টেনেবল মার্কেটিংও আসছে। সাস্টেনেবল এই কনসেপ্টটা এখন অনেকটা ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে। সাস্টেনেবল মানে হচ্ছে সাস্টেন করা, बाचिए रखा, नीचे के बाचिए रखा, ठीक है। सस्टेन कर सकते हैं हम लोग, बोलते हैं ना सस्टेनेंस। तो वही कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में हर एक जगह पर यूज हो रहा है अभी। जैसे सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा हो जहां पर हम लोग लॉन्ग रन में सस्टेन कर सकें। ऐसा होना चाहिए। अब मैं अगर सपोज मैं बता रही हूँ, मैं मार्केटिंग ऐसी कर रही हूँ जो कि अभी तो मेरे पास बहुत स्टूडेंट आ रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर मैं सर्विस अच्छी नहीं दे रही, तो लॉन्ग रन में क्या होगा, आएगा कोई रेफरेंस? नहीं आएगा ना। तो हम लोग को ऐसा ही सर्विस देना चाहिए। मार्केटिंग में भी देखना, अभी पढ़ेंगे हम लोग ग्रीन एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग। मतलब हम लोग ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिसके द्वारा हम लोग लॉन्ग रन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें, और लॉन्ग रन में हम लोग पृथ्वी को बचा के, पृथ्वी भी आ गई उसमें, प्लानेट को सबसे प्रायोरिटी दी गई है, प्लानेट को बचाएं, पीपल को बचाएं, फिर प्रॉफिट पे ध्यान दें। अभी तो वही आ गया ना, कोविड टाइम में क्या हो गया, पहले हम लोग प्लानेट पे ध्यान दें, फिर पीपल पे ध्यान दें कि खुद बचे, जिंदा रहें खुद, और हमारे जो भी सर्विस या कस्टमर्स है सबको बचाएं, देन प्रॉफिट बिकम द लास्ट वन। तो ये क्या हो गया, सस्टेनेबिलिटी आ रही है। तो ये हर कोई का फोकस भी सस्टेनेंस के ऊपर बहुत ज्यादा जा रहा है कि हम लोग सस्टेन कर सकें। अभी कोविड के टाइम क्या सब जिंदा रहे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं, जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। With reduced trade barriers and better transportation and communication facilitates, international trade has been facilitated and the world economy has become increasingly integrated. क्या है ना, अभी जितनी ज्यादा ट्रेड बैरियर्स हैं वो कम हो गए हैं, सारी इकोनॉमी लिबरल होती जा रही है। लिबरल मतलब ज्यादा खुल रही है, लिबरल हो रही है, आसानी से लोग, ये जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, एफआईआईज है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन ओपन अप हो रहा है और इंटरनेशनल ट्रेड फैसिलिटेट हो रही है, जिसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी और भी ज्यादा इंटीग्रेट हो रही है। ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी इकोनॉमी इज इंटीग्रेटिंग अमंग देमसेल्फ। हर इकोनॉमी आपस में ज्यादा आसानी से कनेक्ट हो रही है, ठीक है, कोई क्लोज नहीं है। Therefore, policymakers should understand the implications of globalization and develop strategies accordingly to provide competitive advantage for their countries. Now, this term economic growth, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में, ये जो हम बोलते हैं ना जीडीपी ग्रोथ रेट है या इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, हम लोग बोलते हैं द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ नेशन इज जज्ड बाय द रेट ऑफ ग्रोथ इट अचीव्स। सुनते हैं ना ये टर्म हम लोग कि एक इकोनॉमी कैसी है, कैसा परफॉर्म करे, कैसे पता चलेगा, उसके ग्रोथ रेट से, उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, इससे हमको पता चलेगा। सो एवरी नेशन वुड लाइक टू हैव अ हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, हर रेट इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। बट ये ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या, देखो दो चीजें होती है। एक होती है हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हम लोग बोल रहे हैं हमारे जीडीपी जो है इट इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 14%। नाउ माय पॉपुलेशन इज आल्सो ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 14%। ग्रोथ है क्या, कुछ बचा ही कहाँ। सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे घर में 4 मेंबर थे और उस टाइम में हमारे घर की इनकम थी 40,000, ठीक है। अभी मेरे घर में 6 मेंबर्स हैं और मेरे घर की इनकम है 60,000। तो अल्टीमेटली कोई ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, अगर ये ग्रोथ होता, मैंने इन्फ्लेशन को अभी कंसिडर नहीं किया, अगर 6 है और मेरे ये हो गई 1 लाख, ये 6 मेंबर हैं और ये 1 लाख हो गई, इसका मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ा और यहाँ पर जो रियल जीडीपी है, जीडीपी में भी एक्चुअल में ग्रोथ हमको दिख रहा है, क्योंकि पर हेड इंक्रीज हो रहा है इनका, एंड इन्फ्लेशन तो अलग फैक्टर है, तब हम इसको ग्रोथ मानेंगे। बट अगर मेरा जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से ही मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ तो है नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर ग्रोथ में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक्चुअल में अगर हमको पर कैपिटा या रियल पर कैपिटा जीडीपी को डिपेंड मतलब देखना है कि इफ द जीडीपी मतलब मेरा ग्रोथ क्या है, मुझे अगर देखना है, if the GDP is growing at G% per annum and population at P% per annum, per capita GDP must be, देखो ये फॉर्मूला किस चीज का है, पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा जीडीपी किस रेट में ग्रो कर रही है, उसका फॉर्मूला है 1 + G
डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी माइनस 1। ये होता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का फॉर्मूला। ठीक है ऋतुपर्णा, तुमको थोड़ा ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, बट तुम्हारे लिए ये जरूरी है। अगर पढ़ सकते हो पढ़ो, नहीं तो तुम बाद में सुन लेना। ठीक है। ठीक है, तुम जितना देर कर सकते हो करो, नहीं तो बाद में करना। तो अगर ठीक है। हाँ, जीडीपी ग्रो कर रहा है एट G% पर annum, एक इकोनॉमी में जीडीपी बता रहा है कि इतना परसेंट 10% ग्रो किया और पॉपुलेशन 8% ग्रो किया, तो एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना है, तो उसको मेजर करने का फॉर्मूला है 1 प्लस जी बाई 1 प्लस पी माइनस 1। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी। अब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी जब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमी के लिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे लिए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू अचीव गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, हाई आउटपुट लेवल। आउटपुट लेवल हमको बढ़ाना है। आउटपुट लेवल मतलब अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास है मॉनिटरी पॉलिसी, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अच्छे से। लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना है, सीधा मतलब है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, स्टेबल प्राइस लेवल, मतलब अपनी प्राइस लेवल जो है वो स्टेबिलिटी रहे, उसके लिए क्या है, एक्सचेंज रेट पॉलिसी। ठीक है, इसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन रहे, उसके लिए क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। ये सारी पॉलिसीज इस साल की आ चुकी है, जब पढ़ोगे तो सब तरह तरह के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ये सारी पॉलिसीज किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी इकोनॉमी में वो भी समझ आएगा हमको। स्टेडी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो एकदम नॉर्मल एक चलते रहे, स्टेडीली, ना ज्यादा हो ना कम हो, ऐसा नहीं। प्राइसेस एंड इनकम पॉलिसी एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज। ठीक है ना, अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं। एक मैं ये सब ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, बाद में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का जो एक पूरा प्रोग्राम होता है ना, जो यूनियन बजट निकलता है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, जहाँ पे सरकार अपना पूरा खर्चा और पूरा रेवेन्यू डिफाइन करते हैं कि इतना एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है, इतना एक्सपेक्टेड खर्च, इसको बोलते हैं हम लोग फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, फिर हो गया आपका मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी पैसे को लेकर है, ये आरबीआई डिफाइन करती है मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये मॉनिटरी पॉलिसी के हिसाब से पता चलेगा कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी ऑफ मनी कितनी रहेगी। लिक्विडिटी ऑफ मनी मतलब पैसे की अवेलेबिलिटी। जैसे बोलते हैं मेरे पास अब लाखों करोड़ों रुपए का जमीन जायदाद है, बट मुझे अभी खर्च करना है, तो मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, इसका मतलब लिक्विड कैश तो नहीं है ना मेरे पास। और कोई कोई होता है कि उसके पास हजारों की प्रॉपर्टी नहीं है, करोड़ों की, लेकिन उसके पास लाख 2 लाख रुपए कैश रेडी है, तो लिक्विड पैसे किसके पास है। तो मॉनिटरी पॉलिसी देखते हैं कि इकोनॉमी में लिक्विड पैसा कितना रहना चाहिए। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, इसमें आ जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक्सचेंज रेट पॉलिसी ये डिसाइड करता है कि एक्सचेंज रेट, ये आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक्सचेंज रेट डिफाइन करेगा। इकोनॉमी में एक्सचेंज रेट क्या होगा, जैसे डॉलर के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है, तो ये कैसे डिफाइन होता है, ये तो इंटरनेशनल सारी चीजें होती है ना। अभी तो फॉरेक्स मार्केट है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में ट्रेडिंग होती है और डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस सेट होती है। ठीक है, प्राइसेस एंड इनकम पॉलिसीज, ये सारे फिस्कल का ही काम है, फिस्कल में ही प्राइसेस एंड इनकम पॉलिसी आती है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज आती है। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या है, जब हम कोई चीज को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में स्टडी करते हैं कि एज ऑन डेट, उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक वेरिएबल। और फ्लो वेरिएबल जब हम एक टाइम पीरियड के लिए स्टडी करते हैं कि मैंने चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे स्टॉक वेरिएबल, फॉर इंस्टेंस द रूपी वैल्यू ऑफ अ फर्म, टोटल नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, द अमाउंट ऑफ वाटर, मैंने एनीथिंग, जैसे मैं इसको लेती हूँ टोटल ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन इंडिया एज ऑन 31 मार्च, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉक वेरिएबल। एज ऑन डेट, सेंसस में बोलते हैं एज ऑन डेट इतना इतना लोग एम्प्लॉयड हैं, इतना इतना लोग लिटरेट हैं, उसको बोलेंगे हम लोग स्टॉक वेरिएबल। एंड फ्लो वेरिएबल मतलब चेंजेस, जो चेंज हो रहा है, फॉर इंस्टेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, इसको हम लोग पर्टिकुलर पीरियड के लिए ले रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में क्या चेंजेस हो रहा है।
या एक टाइम पीरियड में क्या रेवेन्यू है, ये तारीख से ये तारीख तक क्या रेवेन्यू है, तो एक टाइम पीरियड के लिए। और जब एज ऑन डेट लेते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक वेरिएबल, और जब पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लेते हैं फ्लो वेरिएबल। ठीक है। Macroeconomics variables such as money supply, consumer price index, unemployment level and foreign exchange reserves are example of stock variable. ये सारा हो गया आपका स्टॉक वेरिएबल। और जीडीपी, इन्फ्लेशन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, कंजम्पशन, ये सब हो गया आपका फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है। अब आता है इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस। सपोज मेरा कोई एक चीज है, हमारे कंट्री का इकोनॉमी या जीडीपी की बात कर रही हूँ। जीडीपी जो है वो इस लेवल से थोड़ा सा उठ के नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर ऐसे आ जा रही है, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो आप देखो ये इन एंड अराउंड जो बैलेंस जो है जीडीपी का वो इस तरफ ही रह रहा है। वो ज़्यादा उठ भी नहीं रहा है, ज़्यादा गिर भी नहीं रहा है, वो इधर ही रह रहा है। अगर इधर भी चला गया, फिर इधर आ गया, फिर वो इधर आ जा रहा है। तो ये बैलेंस आपका इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ पर आ रहा है, इस लेवल पे। इसको बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो बैलेंस पे वही फोर्सेस जो है ऊपर नीचे करके सेम जगह पर आके घूम रहा है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बट अगर ये डिसइक्विलिब्रियम होगा, इसका मतलब कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी ऐसे ऐसे, कभी ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, ये डिसइक्विलिब्रियम हो गया। कोई इक्विलिब्रियम या बैलेंस हम नहीं खोज पा रहे हैं इसमें। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब वो घूम फिर के। इक्विलिब्रियम रेफर्स टू स्टेट ऑफ बैलेंस between two opposing forces or action, whereas disequilibrium refers to a state of equilibrium or balance has not occurred. Economic equilibrium is a state where the actions are repeated in a manner that balances out and it does not mean motionless. Equilibrium मतलब motionless नहीं है। Economic equilibrium मतलब मेरा जो economic condition है वो घूम फिर के वहीं पर आ रहा है। ग्रोथ रेट है वो घूम फिर के यहीं पर आ रहा है, या जीडीपी है वो घूम फिर के इस लेवल पे ही मूव कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर डिसइक्विलिब्रियम में कोई हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, इसमें कुछ बैलेंस निकाल पाएंगे हम, सब ऊपर नीचे होके रखा है। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम का? क्योंकि यहाँ पर हम इक्वल स्टेज को नहीं बोल सकते इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कि क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। बोल सकता है क्या फिर लिए? समझ आया तुम लोग को? अनम्यूट करके बोलो, मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोग को समझ में आया? यस मैम। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स सेम, जैसे स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल है वैसे ही स्टैटिक एंड डायनामिक भी है। स्टैटिक मतलब सेम और डायनामिक मतलब चेंजिंग। ठीक है। ये वाला चैप्टर आज मैंने खत्म किया है, कल मैं इसके आगे वाला चैप्टर पढ़ाऊंगी। ठीक है। एक दिन में ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो तुम लोगों का दिमाग। कल मैं नेशनल इनकम यहाँ से शुरू करूँगी। आई एम जस्ट सेंडिंग दिस बुक टू यू ऑल।